guys, welcome back to my channel. In last lectures, we already discussed the S10. Okay, in this lecture, we are discussing about S15, which is employee benefits. So this is also important for CMA Inter CA final. Okay, so what is the objective of this is employee benefit prescribes the accounting and disclosures of employees benefit. How much type of employees benefits here is. यहाँ पे कर्मचारियों के प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं. There is the type of benefits of employees. The four types of benefits. First is post employment benefit. The second one is short term benefit, short term, long term, post employment and termination benefit. Okay, short term, long term, post employment and termination benefits. Okay, so short term employee benefit is payable in 12 months as 15. Okay, short term employee benefit which is payable in within 12 months. Within 12 months, just like salary or wages, salary, social security contribution, etc. Okay, then second one is long term employee benefit. Long term is more than 12 months. The benefits which is provided, for example, bonus, profit sharing bonus, or deferred compensation, interest, cost. This whole type of long term employee benefits. Then post employment benefit. Post employment benefit is gratuity, pension, etc. That is gratuity, pension. Then last one is about retirement, that is termination benefits. Okay, so termination benefit is VRS, etc. Termination benefit is liability expenses when present obligation and probable outflow of the resources and reliable estimation may be get amount ka reliable estimation. Okay, so here is VRS. Okay, so in the four type of employees benefits, कभी कभी एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट भी लिखना पड़ता है, बट उससे भी इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान. Firstly, we should know about the defined benefit plan, which is more important because defined contribution is very simple. That is, if an employees contribute anything, this is the defined contribution plan. Okay, but defined benefit is complex in nature in regarding accounting, in regarding disclosures, and even in regarding the recognition. Okay, so defined benefit plan is provided and agreed benefits to current and former employees. Actuarial valuation is required here. Okay, actuarial risk. यहाँ पे जो actuarial risk है ना वो entity पे, जो actuarial risk जो है वो employee पे कब होगी when we are talking about the defined contribution plan. बट जब भी हम बात कर रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तो वहां पे जो एक्चुअल रिस्क है वो एंटिटी के ऊपर है. दिस इज ऑन एंटिटी. ओके, तो इसकी अकाउंटिंग जो है वो थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नेचर की है. ओके, सबसे पहले आपको एक्चुअल टेक्निक के अकॉर्डिंग रिलायबल एस्टिमेशन लेकर आना है. देन यू विल डिस्काउंटिंग इट बाय द प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड. देन डिटरमाइन द total amount of the actual gain and loss, and then the plan introduced a change determination resulting post service cost, then plan curtailments etc, settled determination, gain loss. तो ये सारी चीजें जो है ना ये सारी आ जाएगी डिफाइंड बेनिफिट प्लान में. ओके, सो यहाँ तक तो था थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होना. ठीक है, मैंने हेडिंग में S15 लिखा है बट इन S19 भी मैं यहाँ पे साथ में डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि this all things are same in India's 19 as well. But what is the differences? The very few differences in theoretical point of view and in practical point of view. There is only one difference, that we are using P&L in S15 but we are using OCI, that is other comprehensive income account, while we are debit or credit the gain or loss. Okay, सो S15 में P&L में डेबिट क्रेडिट कर देने का. ठीक है, मैं डिफरेंसेस का साथ में लिख के लेती हूँ क्योंकि बिकॉज डिफरेंसेस का क्या होता है, समटाइम्स दे आस्क अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स
on only differences. ठीक है, so S15 and 19, Ind AS 19 difference. First point is about the P&L and OCI. This is a very common difference in all as and Ind AS. Okay, then second is multi-employer plan is only discussing in Ind AS 19. So yeah, multi-employer plan. Then third one is the parent entity concept, where joint venture, parent entity obligations, this all are discussing in only Ind AS 19. We are not talking group entities discussion in AS 15. So इसमें अकाउंटिंग है भी नहीं ग्रुप एंटिटीज वगैरह का AS 15 में. ओके, सो लास्ट वन डिफरेंस, एक और डिफरेंस है इसमें जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, which is all employees include directors in Ind AS. ओके, सो वो भी थियोरेटिकल डिफरेंस है, उसका हमारे उससे कोई लेना देना नहीं, बट ठीक है, थियोरेटिकल डिफरेंस में Ind AS में डायरेक्टर्स को भी एम्प्लॉइज मान लेते हैं. ठीक है, पर हमारे इधर एज में डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज में नहीं आते. तो जो हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है. दैट वन फर्स्ट डिफरेंस इज P&L में उधर अकाउंटिंग करना है, P&L में इधर अकाउंटिंग करना है, एंड OCI में उधर Ind AS में अकाउंटिंग करना है. ओके, तो कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं जिसको हम डिस्कस कर देते हैं. फर्स्ट इज द क्वेश्चन, क्या बोलता है ये क्वेश्चन? ओके, सेटलमेंट अलाउंस स्कीम है, पेमेंट करना है एक स्कीम में, सेटलमेंट अलाउंसेस का पेमेंट करना है. ठीक है, और रिटायरिंग एम्प्लॉयज के लिए, जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज है इंटाइटल्ड टू रिइंबर्स टू सर्टेन ट्रैवल एक्सपेंसेस for classes they are entitled to as per the rules and lump sum payment to cover the expenses of food stay etc. ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि या तो लंप सम अमाउंट सेटलमेंट का दे या फिर फूड ट्रैवल अलग अलग करके. ठीक है, लंप सम नहीं दे. तो यहाँ पर कंपनी क्या बोल रही है कि हम इस सेटलमेंट अलाउंस को क्लेम बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं. बट क्या कंपनी करेक्ट है? द कंपनी इज नॉट करेक्ट, द एंटिटी इज नॉट करेक्ट. उसको यहाँ पे क्लेम बेसिस के बजाय एस्टिमेट करने के बाद उसको क्या करना चाहिए? प्रोविजनिंग करनी चाहिए. तो एस और इंड एस दोनों में ही आंसर सेम है कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा, नॉट ऑन क्लेम बेसिस. ओके, सो सेटलमेंट अलाउंस, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्लेम बेसिस पर नहीं, प्रोविजन बनाना पड़ेगा. एस और इंड एस दोनों में यही आंसर. ओके, देन एक आधा और कोई क्वेश्चन हो तो मैं डिस्कस कर लेती इधर. हाँ, ये देखो, एक और क्वेश्चन है कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन क्या था फर्स्ट टाइम पे. ठीक है, स्कीम में 6 लाख का एक्चुअल वैल्यूएशन आया. ठीक है, फर्स्ट टाइम पे एक्चुअल वैल्यूएशन कितना क्या? 6 लाख का आया एक्चुअल वैल्यूएशन. अब एंटिटी वांट टू डेफर इट इन नेक्स्ट ईयर. क्या ये राइट है? और नेक्स्ट ईयर दे कैन डेफर? नो, they should recognize it immediately in P&L if it is S and in OCI if it is Ind AS. Okay, so इसको डेफर नहीं कर सकते हैं एक्चुअल बेसिस पे. फर्स्ट टाइम जो कंपनी ने वैल्यू लेकर आए स्कीम में, इसको रेफर नहीं करेंगे, या तो P&L या OCI में इमीडिएटली लेकर जाना है. इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है. करंट ईयर itself is not deferred in next year. Okay, देन एक बेसिक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन. ठीक है, मैं क्वेश्चन की डिटेलिंग इधर, सॉरी डिटेल नहीं, कुछ समरी इधर लिख रही हूँ, कंसाइज वे में मैं क्वेश्चन को लिख लेती हूँ, so that we'll get the information what the question is asked. फर्स्ट इज फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट एट द बिगिनिंग एंड एंड. बिगिनिंग में कितना है? द अमाउंट इन बिगिनिंग इज 2800 and end में कितना है? 3086. Okay, respectively. The employees contribution to plan during the year is ₹290. यहाँ पे क्या हुआ? एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, एम्प्लॉय कॉन्ट्री प्लान कितना है? How much amount given? 290. Okay, employee contribution plan is 290 and benefit payments to retired but 320. benefit pay कितना किया? benefit payment कितना है? 320. Calculate the actual return of the plan asset. Actual return हमको कैलकुलेट करना है. एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करना है. मैं एक क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट
कह सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट है टोटल एक्चुअल रिटर्न, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट। बिगिनिंग में जितना भी अमाउंट हमारे पास है उसमें हम कॉन्ट्री को ऐड कर देते हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करने के बाद में जितना भी पेमेंट किया है बेनिफिट पे उसको लेस करने के बाद में जितना भी एक्चुअल रिटर्न है उसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नहीं फिर उसमें से और लेस करना है एंड फेयर वैल्यू, तो हमारे पास में फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट के बाद में एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। या तो एंड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो ये सब करने के बाद में, और एंड की वैल्यू को लेस करने के बाद में ये भी हमको देखना पड़ेगा इसमें से ये मिसिंग है या ये मिसिंग है, जो भी मिसिंग है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको एक्चुअल रिटर्न मिसिंग है तो एक्चुअल रिटर्न को हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं, सबसे फर्स्ट बिगिनिंग में 2800, contribution, how much amount of contribution is 290, what is the benefit paid here is 320, the return is question mark, and the end value of the is 3086. We should solve it and we will get 316 as actual return. Okay, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इस का, दैट इज वेरी इजी। एक दो और क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे सपोज ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज जो है जिसने 3 टाइप की लीव है, पहला तो है एनुअल लीव, the second one is sick leave and the third one is casual leave. Okay, 3 टाइप की लीव है। First is annual, sick and casual. Annual, sick, casual. Okay. So employee of 3 टाइप्स के लिए इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है पूछा है, द क्वेश्चन इज कंसिडरिंग, मैं रीड आउट कर लेती हूँ होल क्वेश्चन, आई रीड आउट इट। एम्प्लॉय ऑफ द H Limited are entitled to 3 type of leave: annual leave, sick leave and casual leave. It's credited to the employees in April and utilized during the financial year. Okay. No carry over, the casual leave is permitted. मतलब casual leave को carry over करना permitted नहीं होता, we all know ना. It is free. So utilized during the financial year. Obviously casual leave should be utilized in the same year. Otherwise it will never ever carry forward. Okay. Sick leave is credited at the rate of 10 days of first day of April to all employees. There is no limit to number of sick leave that can be carried forward on retirement balance of the sick leave. Subject to the maximum of 150 days can be encashed. Annual leave is credited based on the number of years of services. Services less than 5 years, 15 days. Services 5 to 10 years, 17 days. Services 10 to 15 years, 19 days. Services of the 15 years and above is 21 days. Maximum number of the annual leave balance that can be carried forward as on 31st March is 250 days. Annual leave is engaged during the service up to 50%. The question of for considering is, should the company treat the above as short-term employee benefit or post-retirement benefit or other long-term employee benefit? Whether the company will need to follow differential treatment. क्या कंपनी को कुछ differential treatment follow करना है एल और एसएल का, sick leave का और annual leave का? Since the part of AL is encashable during the service, but SL is encashable only on retirement, through both can be availed fully during the service. ठीक है, simple question था, question समझ में आ गया होगा ना? I read out the answer verbally first, then I will solve it on blackboard. First is casual leave is not accumulating. I know that is it can not be carried forward. We know. They lapse during the current year. It's not used. Do not entitle the employees to it.
cash payment for unused entitlement on leaving company. The company recognized no liability or expenses for casual leave. Casual leave के लिए कंपनी को कोई liability नहीं रखनी ना, प्रोविजन बना के क्यों रखे जब हमको पता है इसी साल देना था, नहीं दिया तो कोई liability अगले साल का लिया बनता ही नहीं है. Okay, there is no any liability, so it is not required to make provision for the casual leave, even though that this is for maternity or paternity leave. Okay. So L and SL के लिए entitled the employees of the company can be carried forward for more than 12 months. Okay, तो यहाँ पे तो क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है. तो ये किस टाइप की कैटेगरी क्या है, इसकी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, 12 महीने से ज्यादा का है ना, दिस इज मोर देन द 12 months, so can be carried forward in next year. So it is long term employee benefits, and since the benefits is not payable after the completion of the employment, the same cannot term as पोस्ट एम्प्लॉयमेंट. सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता, अगले साल तो जा रहा है लेकिन वो एम्प्लॉय हमारे कंपनी से चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी ना हमको कुछ भी प्रोविजनिंग करना. सो इट इज नॉट अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. ओके, recognition and measurement of the L and SL should be actuarial basis, प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड लगा के उसको क्या रिकॉग्नाइज्ड कर लेना. ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. वी आर ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्रोविजनिंग ऑफ द अनयूज्ड लीव. Is it required provisioning of unused leave? Yes, it is required to make provision for the unused leave. Okay. और कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, एक आधा क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ना. वन मोर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा. आई विल summarize it on whiteboard, sorry blackboard. Yeah. E Limited is following the details of the leave of its employee. Name क्या क्या है एम्प्लॉय का, 1 2 3 4 5 6, X Y Z M N P M N P. ओके, यहाँ पे जो लीव है वो कितनी है, 80 70 60 90 85 एंड फाइनली 65. ओके, ये टोटल लीव है, टोटल लीव. The amount of leave availed, the days of leave availed, इतने दिन का है, जिसमें से availed कितना का, 50 45 50 70 65 and 45. Again, wasted leave कितना है, wasted 2015 2010 और 9. ओके, अनवेस्टेड कितना है, इज विजिबल ना. 5 10, थोड़ा सा इसका ध्यान रखते, इधर ही लिखते हैं, 5 10 9 10 और 9. ओके, देन प्रोबेबिलिटी भी गिवन है. प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.9 0.7 0.6 0.5 1 and 0.2. ओके, सिंपली यहाँ पे टोटल वेस्टेड लीव और अनवेस्टेड लीव, टोटल वेस्टेड लीव तो यहाँ पे हो रहा है 74, और अनवेस्टेड लीव के लिए प्रोबेबिलिटी जो है उससे मल्टीप्लाइड कर लेना. ठीक है, 5 into 0.9 कितना हो जाता है, इन सब का टोटल लिख रही हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका टोटल आता है वो कितना आ जाता है, 27.10. और टोटल जो हमारे वर्किंग डेज है वो 1000. वर्किंग डेज की जो सैलरी है, सैलरी पर वर्किंग डे 1000 है, मतलब एक दिन का सैलरी 1000 है. कितने दिन का 74 का 74,000 और 27,100. ठीक है, ये क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस कर लिया. और कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन है, हाई प्रॉफिट लिमिटेड जो है वो शेयरिंग has a profit sharing plan with its employees whereby 3% of the profit is paid to employees who remain with company throughout the year and till the date of payment till 30th September. Such scheme is also extended to contract employees.
Until now, High Profit Limited was debit the expenses in the year to payment, and will the position change after revised AS 15 come into force? Revised AS 15 आने के बाद क्या कुछ पोजीशन में चेंज होएगा? 3% का जो प्रॉफिट था ना एम्प्लॉयज के लिए वो कंपनी के पास में रहता है, और स्कीम जो है वो एक्सटेंड है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय तक। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो चाहे सारे एम्प्लॉय हो, हमारे लिए तो सेम ही है, ठीक है। तो इसमें S15 में enterprises should recognize the expense cost of the profit sharing bonus when and only when enterprise has a present obligation to make such payment and reliable estimation। दो चीज पहले भी देखी थी, present obligation and reliable estimation, ठीक है। तो दोनों ही चीज कंप्लीट है इधर भी, और जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एग्जिस्ट करता है, जो रिकॉग्नाइज तो करना है प्रोविजन। अब ये चाहे यहाँ पे ऐसा बोल रखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है क्या उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, सारे एम्प्लॉयज पे एप्लीकेबल है, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए भी सेम ही प्रोविजन है, कोई भी इसमें एक्सेप्शन तो बोला नहीं था मैंने कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को इसमें से बाहर निकाल के रखा, ठीक है। तो एक्सेप्शन तो है नहीं वो, तो उनके ऊपर भी ये बोला एक्रूअल बेसिस पे उनको क्या करना, अकाउंट फॉर करना है, पेमेंट बेसिस पे नहीं। एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंट फॉर करेंगे, पेमेंट बेसिस पे नहीं। यही इक्वेशन था, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। Spectrum Limited जो एम्प्लॉयज का है प्रॉफिट इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्पेक्ट्रम लिमिटेड। हाउएवर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट is linked with the rate payable on the government profit. Spectrum Limited has granted to compensate for deficiency in form of additional contribution should the interest return on investment is less than the interest payable as declared by the government managed PF। दोनों का रिटर्न अलग अलग है, गवर्नमेंट मैनेज पीएफ में जितना रिटर्न देते हैं उससे कम रिटर्न दे रहे हैं, तो अब इसको क्या करना है, तो इसको अकाउंट फॉर करने के लिए जो डिफरेंसेस है उसका एक रिलायबल एस्टिमेशन लेके आना पड़ेगा, जो कैसे एक्चुअल वैल्यूएशन से लेके आएंगे, और उसको फिर क्या करेंगे, अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंस है वो अगर इंड एस है तो ओसीआई में, और एस है तो पीएनएल में चला जाएगा। आता क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन है जिसमें ऐसा बोल रखा है कि एक्चुअल वैल्यूएशन जो था एंटिटी का, ग्रुप एंटिटीज का, एलआईसी ने उसको सर्टिफाइड कर दिया, तो क्या कंपनी को एक सेपरेट एक्चुअल वैल्यूएशन करवाना जरूरी है। तो कहाँ पे बोल रखा है कि एलआईसी का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो अगर वो हमारे पास है तो हमें उस पर रिलाय ना करके खुद का सेपरेट वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा ग्रुप एंटिटी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलआईसी का जो सर्टिफिकेशन है दैट इज राइट, कोई सेपरेट वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन टाइप ही था, केस स्टडी टाइप ही था, मैंने डिस्कस किया। और कोई केस स्टडी यहाँ पे प्रोविजन ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अकॉर्डिंग बोल रखा है न्यूबॉर्न लिमिटेड इज एस्टैब्लिश्ड इन 2005, ठीक है। और जो प्रोविजन है ग्रेचुइटी का, ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में आर नॉट एप्लीकेबल टू द कंपनी एज नो एम्प्लॉय हैज पुट इन 5 years ऑफ सर्विस। जब तक एम्प्लॉयज जो है वो 5 साल टोटल सर्विस के कंप्लीट नहीं कर देते तब तक हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ऐसा ग्रेचुइटी एक्ट के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। तो कंपनी ने बोला है कि हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे ग्रेचुइटी का, इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2008। मतलब 2005 में कंपनी बनी, 2006, 2007, 2008 तक कंपनी ने कोई प्रोविजन अकाउंट फॉर नहीं किया, ये बोल के कि ग्रेचुएट एक्ट में वो रखा है कि जब 5 साल कंप्लीट होंगे तभी लायबिलिटी आएगी। तो क्या कंपनी ने सही किया? नहीं, कंपनी ने सही नहीं किया। ऑब्वियसली प्रोविजन तो आप बना के रखो, अगर एम्प्लॉय है 5 साल कंप्लीट होंगे तो उसको एक ग्रेचुइटी देना पड़ेगा, तो आपको क्या है, प्रोविजन बनाना चाहिए। ये सोच के कि ग्रेचुएट एक्ट में लिख रखा है 5 साल बाद ही पे करना है तो 5 साल बाद ही बनाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और है जो डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक थ्योरी क्वेश्चन और लास्ट डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें क्या लिख रखा है, एक्सप्रेस लिमिटेड ने प्रिपेयर किया है ड्राफ्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, ठीक है, which contains the following accounting policies relating to employees benefit. The company has obtained actuarial valuation for first time पेंशन स्कीम के लिए रिबिल किया सरप्लस 18 लाख का, ठीक है, और स्प्रेड किया उसको नेक्स्ट 3 इयर्स तक। सिंपल सी बात है, पहले भी बताया था, इसको पीएनएल और ओसीआई में लेकर जाना, डेफर्ड नहीं करना है, मतलब उसको आगे 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके स्प्रेड नहीं करना है, ठीक है, इमीडिएटली पीएनएल या फिर। अच्छा, इसमें एक बात और है, अगर कुछ चेंज आ जाता है फिर से वैल्यूएशन में, ठीक है ना, नेक्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो वो AS5 में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन के रूप में, according to AS5 it is a change in accounting estimation, so you should account for as per AS5 this is a change in accounting estimate, okay। तो AS5 का भी तो रेफरेंस दे देना। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आधे घंटे में हमारा ये एस खत्म हो जाना चाहिए। एस प्लस इन AS 19 an employee Johar has joined a company ABC Limited, ठीक है, जिसमें क्या है, summarize it on boards।
है आईपीसी लिमिटेड ने एनुअल एमोल्यूमेंट कितना है एनुअल एमोल्यूमेंट 14,90,1 okay. The company also has the policy of giving a lump sum payment of 25%. Lump sum payment कितना देने वाली है कंपनी 25% of last drawn salary. For each completed year of service, if the employee retires after completing the minimum 5 years of service, अगर वो retired कब हो जाता है 5 years, minimum 5 years of service. The salary of Johar is extended to grow 10% per annum. Salary जो है 10% per annum expected to grow, and the company has inducted Johar is beginning of the year. It is expected that it will be completed the minimum 5 years term. So before retiring, what is the amount of company should it change in its P&L every year as goes for the defined benefit contribution? हर साल एवरी ईयर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट के रूप में कंपनी को कितना अमाउंट क्या करना है चार्ज करना है. Also calculate the current service cost and interest cost of the charged per year assuming discount rates 8% पे दे रखे. ठीक है, और क्या क्या कैलकुलेट करना है सर्विस कोस्ट, करंट सर्विस कोस्ट और इंटरेस्ट कोस्ट. ठीक है, और कैलकुलेट करना अपने को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान. ठीक है, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू 14,90,210 पीवी फैक्टर कितना है, व्हाट इज द पीवी फैक्टर हियर इज 10%. ओ 8% या 8% और 10%. एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितना, लम्प सम अमाउंट 25% का है, 10% पर एनम इंक्रीज हो रहा है ना, तो पीवी फैक्टर तो 8% ही है, बट यहाँ पे देखो 14,90,210 इंटू कितने ईयर से 10% 5 ईयर्स के लिए 110% इंटू 110% इंटू 110%. how much amount we get here 24,000,000. ओके, डिफाइंड बेनिफिट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास में, इतना जो है इसका 25% लमसम वो करना है. ठीक है, 5 सालों तक इट इज 30 लाख. ओके, दिस इज द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे 30 लाख जो है हर साल पीएनएल से कितना चार्ज करें, 6 लाख चार्ज करेंगे, डिवाइड बाय 5 कर दो, हर साल 6 लाख चार्ज करना है. 6 लाख का प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है. 6 लाख का तो एक अमाउंट आया था, अब इस 6 लाख को 1 2 3 4 और 5 6 लाख दिस इज द 6 लाख. ओके, फिर आ जाता है 8% पे कितना है 0.735 0.794 0.857 0.926 और 1. ठीक है, कितना अमाउंट आ जाता है करंट सर्विस कोस्ट का अमाउंट 441,000 देन 476,400 514,200 55,56,000 6,000,000. ठीक है, तो यहाँ पे करंट सर्विस कोस्ट तो आ गई. 1 2 3 ऑब्लिगेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं सारे ईयर्स का. 1 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं होगा. यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 0 ऑब्लिगेशन है और 441,000. ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में 0 ऑब्लिगेशन है और करंट सर्विस की कोस्ट जो है वो कितनी है 441,000, तो ये आ जाएगा. इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा देखो डिफरेंट करना पड़ेगा. इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 35,280.
इन दोनों का डिफरेंस है 76264. The difference between this is 123447. Final difference between the final amounts is 177859. Okay, so जितना भी अपने पास में अमाउंट है, अब इसको काउंट डाउन करते हैं. 1 2 3 4 5. फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस है ओपनिंग वो तो जीरो है, ठीक है. करंट सर्विस की कॉस्ट कितनी है? 441000. टोटल अमाउंट कितना है? 441000. इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 441000. इसकी जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो कितनी है? 476400. तो इसका यहाँ का जो बैलेंस आ गया, डिफरेंस कितना आ गया? 35280. और इनका टोटल जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया? 952680. कैलकुलेटर ही नहीं लेकर आई यार. थर्ड ईयर के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते. 952680 पर 514200. डिफरेंस कितना है? 76214 और 15. ये अपना जो अमाउंट है ना, बैलेंसिंग फिगर 15430941. फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का 15430994. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे एज विद इन हाफ एन आवर हमने एज 15 और एज 19 के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे बेसिक्स डिस्कस किया. उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो डिस्कस किए. नेक्स्ट जो एज मैं डिस्कशन में लेने वाली हूँ, एज की सीरीज अभी मैं सोच रही हूँ डिस्कशन में लेने की. तो नेक्स्ट एज जो मैं डिस्कशन में लूँगी वो होगा एज 11. ओके, थैंक यू वेरी मच.